Just click on that, Okay. and I think everybody will get a message कि the session is being recorded. Okay, I've clicked on that. Okay, make a full screen. This is fine. Actually, I have to go to the websites also. I have to show a lot of website stuff. So I have to jump in between the presentation and the website. So this is the reason I'm doing like this. Otherwise, I can start a full slideshow. That will look cool, but that is not the purpose. Purpose is that you should be familiar with the concept. That's it. I'm okay if you're able to see the rest of the slides. Okay, one chat box is open. And I'll monitor the chat box. Don't worry about it. Acha, Yes, thank you, I'll sir. do that. You, No you, problem. you have been designated as my technical support, sir. Sure. Without pay that too. Okay, thankfully the lights have come. One second, I'll turn off my. I'm so sorry for this. Okay. So if I want to buy a cell phone, so what are the things that I need to know about a cell phone? Like I have a budget of, say for example, some 20-25,000. I go to the shop, and so in order to evaluate a cell phone, a good cell phone with that budget, I need to know कि exactly उसका RAM कितना है, what is the RAM, what is the processor, how is the camera quality, कैसे चलता है, how is the processing speed. So based on the evaluations, I will figure out a cell phone which is the best one among some company that I have selected. So same goes with the stock market and stocks also. There are evaluation criterias, and those are called the fundamental analysis. So fundamentals, what basically we are looking at the base of the company and trying to find out the exact intrinsic value. उसका value कितना है? Why should I buy a company unless and until it has got a value? So these are the main focus points of fundamental analysis. Now, I'll read them out. Net profit, very important. Profit margin, very important. Return on equity, price earning ratio, price to book ratio, and D ratio. Now, these ratios might sound very complicated, but now I'm going to the BSE side. If you are able to see this thing, see all the websites I will open. I'll go to the BSE website. Okay. Now I want to analyze a company based on the fundamental analysis. First thing what I will do, I'll go to the BSC and I'll put चलो TCS का करते हैं. Tata Consultancy Services. Okay. See, get used to using BSC because there is a lot of free information available on the BSC and the NSC sites. I know a lot of apps are there, but once you are used to this thing, so it will be very helpful to you all. So as soon as I open typing in the BSC website, the Tata Consultancy rates would appear over here. These are the rates. This is what it closed on yesterday's session, 3290. Okay. Now all the other information that I want to point out will be here. Now, what is the valuation of the company? How much, if I want to buy a TCS, a whole company, how much will I have to pay? 12 lakh 34,609 crore is the value that I will have to give to buy entire TCS. This is what the market capitalization of this company. And now these are the other important factors like fundamentals that I want to talk about. Every share which is there in the floating and total share, TCS makes 82 rupees per share. Like their earning is 82 rupees per share. Now, after going through this entire P's and PBs and ROEs, I'll simplify this. But first of all, we go to the financials. If you want to buy any company, don't go directly and buy unless and until you see its financials, its rating, Group A. Many of the companies are rated as a T, X, Z. Never buy those companies. Okay. Always buy A, B, C, like category A and category B. How they are categorized?
company whose reporting is on time, they are like once they have declared ki yes, so and so dates will report the results, so they have gone to the exchanges, quarterly results are on time, so every other reporting related to price and everything is reported on the exchange. So based on that, they are rated. So always buy highly rated companies, highly liquid companies. Now, once I go to this financials, second, how are the annual trends? The first thing that a fundamental analyst should look at, ये एकदम easy है, don't get this thing, अरे यार ये तो simple बोल रहा था and all of a sudden he started showing P&L statement and बहुत easy है, कमाई दिखा रहा हूँ TCS की बस. Only thing I'm showing is how much the TCS earns year on year. तो 2016 में TCS made a revenue of 85,000 crores, which has grown to 92,000 in 2017. In 2018, it was 97,000. Then in 2019, it's 1,23 crores, and in 2020, 1,31 crores. So, are you able to see this jump year on year? This is the reason TCS is one of those highly rated stocks. This is the one thing. When you are buying a company, sales should have an upward trajectory. Okay? Then I come back after the expenditure, what remains in hand. This is the revenue. Okay, very good. Good revenue. How much is that a realized profit? This much. This is what they get it in hand. Okay? From 2016 till 2020, TCS का net profit 22,000 से it has grown to 33,260. This is how you evaluate a company. And one more very important factor is profit margin, जो हमने स्लाइड में देखा था, वो यहाँ पे लिखा रहता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन. ठीक है, मतलब अगर 100 रुपए का माल बेचता है टीसीएस, तो उसका बचता कितना है हाथ में? ऑपरेटिंग मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन. 100 रुपए की चीज बेचता हूं तो 2020 में ग्रॉस बेसिस 34 रुपए बच रहा है, 34 रुपए में से खर्चा होके 25 रुपए बच रहा है. दिस ऑल्सो शुड बी ऑन अपवर्ड ट्रेजेक्टरी, एटलीस्ट इफ नॉट अपवर्ड, एटलीस्ट स्टेबल तो होना चाहिए. तो 3 थिंग्स वी हैव सीन. एक तो रेवेन्यू ऊपर की तरफ, and then net profit ऊपर की तरफ. ठीक है, year on year it should be rising, profits also should rise. Operating profit में क्या है? Management is able to use the proceeds very effectively and with a minimum cost, and there is a no competition pressure, or even if there is a pressure they are able to tackle it. That is how you maintain margin. ठीक है, ये इसके साथ ये familiarize हो जाओ. I have put in like TCS में आया, ठीक है, here I have seen basic details and I have directly jumped to results. ये results में आने के बाद I am able to see annual results, I am able to see quarterly results. ठीक है, trajectory should be on. कमाई कितना है? If there is no earning, there is no point buying in a company. If I am a fundamentally, अगर मुझे long term के लिए कोई, एक second, the 2 hands have been raised. They're asking, is it available for mid cap and small cap as well? For everything it is available. BSE site पे जाओ, you'll get every which small cap and mid cap company. एक second, where is the chat box? Okay, is it available for mid cap and small cap? सारी कंपनियों का. सारी कंपनियों का मिलेगा, एनी मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक. अच्छा चलो एक मिड कैप का स्टॉक ही ले लेते. सुजलॉन ही दिखा दो ना, उन्होंने बोला है. सुजलॉन दिखाऊं? ओके. लाइक इन्वेस्टमेंट है शायद सुजलॉन में. सुखदेव साहब ने बोला है, मेरा तो है. ओके 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 ओके. सुजलॉन का ये देखा जाए मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ का है. ठीक है, अब अभी तो कमाई तो नहीं हो रही, हर शेयर के पीछे 2 रुपए का नुकसान ही है सर. और ये कैश ईपीएस रहता है ना, कैश वाला, मतलब एक शेयर के पीछे कैश रियलाइज, उसमें भी नुकसान है. पी नेगेटिव में, पीबी नेगेटिव में, आरओई 51%. अगर मैं फाइनेंशियल्स में जाऊं उनके रिजल्ट सेक्शन में, एनुअल ट्रेंड, नेट प्रॉफिट ये था, प्रॉफिट से नुकसान में 2016 में 46 करोड़ का था, 355 crore in 2017. Post that, the losses like 7,000 crore, 3,000 crore. See, even if you want to take a chance on these sort of companies, ना, उसमें कोई point नहीं बनता है. Say for example, I am buying Suzlon thinking कि चलो green energy will have a future.
but it should come in this thing na. See, say for example, Suzlon starts reviving tomorrow. 6 रुपए का stock 12 रुपए हो गया. I will not mind buying it at 100 rupees, but unless I see some value, फिलहाल तो इसमें value ही नहीं है. There is no value in this stock. हर साल 3-3, 4-4 हजार करोड़. See, revenue is 375 crore and the loss is 3,276 crore. ये ऐसा क्यों होता है? Interest payment. Expenditure में major component will be interest payment. So that is the reason. So whenever you do analysis based on this results section, तो हमेशा trajectory upward होनी चाहिए. Do not invest in this such companies. ठीक है? There is a high chance in highly leveraged companies wherein you can lose all of your money. So invest only in a quality stock जिनका जो मैं बता रहा हूँ revenue, net profit और profit margin stable है. ठीक है? और दूसरी एक चीज मुझे दिखानी थी, TCS पे हम लोग वापस जाएंगे. ठीक है? अगर आपको किसी ने बताया, किसी दोस्त ने सजेस्ट किया कि नहीं मुझे यार एक कंपनी है, मुझे उसके बारे में जानना है एग्जैक्टली, तो लोग एक दूसरे से पूछते हैं, वेबसाइट पे छान मारते हैं. देयर इज अ बेटर प्लेस फॉर दैट. मैंने एक बार बोला भी था कि एनुअल रिपोर्ट एग्जैक्टली कहाँ पे देखते, इफ आई हैव टू चेक द डिटेल्स ऑफ एनी कंपनी, तो मैं एनुअल रिपोर्ट पे जाऊंगा. ठीक है? आई क्लिक ऑन, इसी के नीचे फाइनेंशियल्स पे अगर मैं क्लिक करता हूँ ना, इसी के नीचे एनुअल रिपोर्ट है, तो वो यहाँ पे मिल जाएगी स्टार्टिंग फ्रॉम 2010 टू 2020. तो इफ आई ओपन इट, ठीक है, आई विल गेट द एंटायर डिटेल्स ऑफ टीसीएस. मुझे किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग फ्रॉम द मैनेजमेंट से लेके बिजनेस से लेके. सी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, highly qualified names are there. You know this person, Mr. Muti. बिजनेस का पहला ये चीज देखना चाहिए, दे आर एथिकली ड्रिवन. सी दी ऑल दिस पीपल, इफ यू गूगल देयर नेम्स ना, they have specialized into one or the other thing. Highly qualified, highly efficient people are managing the TCS. तो पहले वो पूरी डिटेल्स आ जाती है उनकी, हाउ द मैनेजमेंट एंड द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यहाँ पे आ जाता है. ठीक है? एज एन इन्वेस्टर मुझे क्या देखिए, कंपनी पैसा बना रही है कि नहीं बना रही है, कंपनी ग्रोथ कर रही है कि नहीं. स्टॉक मार्केट में द हाईएस्ट वैल्यू इज गिवन टू द ग्रोथ. If the company is growing, stock market will reward it. If it is not, you know what happened to Reliance Capital, Reliance Communication, some or the other way they must grow. ठीक है? It's a typical mechanism which prices growth. तो यहाँ पे दिया है रेवेन्यू ट्रेंड कैसा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ईपीएस कैसे बढ़ रहा है, ऑल दी डिटेल्स, एम्प्लॉय मैट्रिक्स कैसे थे, शेयर होल्डर को पे आउट कैसा गया, ऑल दी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स आर गिवन ओवर हियर. ठीक है? टीसीएस हाउ इट इज टैकलिंग विद कोविड, क्या एग्जैक्टली उनकी स्ट्रेटेजीज है. तो दैट इज हाउ एंटायर डिटेल्स आर प्रेजेंटेड इन द एनुअल रिपोर्ट. आपको फाइनेंशियल्स देखने, एवरीथिंग इज लिस्टेड ओवर हियर. नाउ if I go to this place, अभी मुझे देखना है कि यार टीसीएस में कहाँ क्या क्या धंधा एग्जैक्टली कहाँ है, कहाँ से बिजनेस करती है टीसीएस, कहाँ से बिजनेस आता है. बैंकिंग एंड फाइनेंस के जो सॉफ्टवेयर वो बेचते हैं, उसका 38% बिजनेस वहां से आता है. रिटेल कंज्यूमर के जो सॉफ्टवेयर बिकते हैं वो इसमें से इतना आ जाता है 6.7. कम्युनिकेशंस में इतना, मैन्युफैक्चरिंग से इतना ही है. अगर मैं देखूं उनका रीजन वाइज, जियोग्राफी वाइज रेवेन्यू, 52% कम्स फ्रॉम यूएस एंड 30% उसका इसमें से आता है, यूरोप में से आता है. सो ऑलमोस्ट 82% के रेवेन्यूज कम फ्रॉम द आउटसाइड. तो बेसिकली आउटसोर्सिंग कंपनी है ना टीसीएस. दैट इज द रीजन 80% ऑफ द रेवेन्यूज कम फ्रॉम आउटसाइड. कल को अगर कोई ट्रेड रिलेशंस खराब होते हैं तो टीसीएस विल बी द बिगेस्ट हिट. तो दिस इज हाउ you analyze a company based on this thing. कुछ नहीं करना है, simply you go to the result section, ये बढ़ना चाहिए, ये बढ़ना चाहिए, operating profit should be on the rising trajectory. ठीक है? It is as good as finding out कि हाँ RAM कितना चल रहा है, क्या कितना चल रहा है, easy. So that is the one thing. ये TCS के बारे में. Coming back to the P, price to earning multiple. ये basically क्या होता है कि say for example, if the company XYZ makes 1 rupee, for each rupee, how much I am paying
as an investor. So for every rupee that TCS earns, I am spending kitna 39 point, just a second. Okay, for every rupee I'm betting on this is how much, 39.81 rupees में bet कर रहा हूँ. अब ये TCS का PE कैसे निकल के आया, ये EPS into PE निकाल दो, this will be the closing price. प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स, मतलब इसको इससे डिवाइड किया, मार्केट प्राइस को पर शेयर से डिवाइड किया, तो यू विल गेट दिस पीई मल्टीपल्स. अगर आप देखोगे टीसीएस का 39 है और मैं इसी का भाई इन्फोसिस को इससे कंपेयर करता हूं तो वो 31 है. सो कैन एनीवन इन द चैट बॉक्स और अनम्यूट हिमसेल्फ टेल मी कि व्हाई टीसीएस का पीई इन्फोसिस से ज्यादा है? दिस थिंग टीसीएस का इन्फोसिस से ज्यादा क्यों है? Higher growth, somebody's typed. Okay, anybody else want to try? Chat box में type करो. Price is more. Price is more. What is more? The price, market price. Market price is more, but why? Why is that? Why an investor would bet on something higher than that? मतलब इसको 40 रुपए दे रहा हूं मैं और एक चीज को 31 रुपीज ही दे रहा हूं. Why? एक चीज, एक दूसरी कॉन्सेप्ट में बताता हूं आपको. ये दूसरी चीज ये देख लो, ये इन्फोसिस का कितना है, 26 है. टीसीएस का कितना है, 36. So somebody has rightly mentioned कि exactly उसका ग्रोथ ज्यादा है. EPS is good, correct. EPS is, कमाई अच्छा रही है तो भाव भी ऐसा ना. अब कोई आके मुझे बोलेगा कि PE 40 का महंगा है, बट as long as the company maintain उसका ग्रोथ रेट, अगर ग्रोथ रख रहा है जगह पे तो PE does not matter. High PE is okay as long as the company is able to maintain its growth rate. अगर आप यही चीज में हिंदुस्तान यूनिलीवर का ले लोगे, हिंदुस्तान यूनिलीवर का अगर ये देखा जाए तो पी 80 का है. ठीक है, यूजुअली एफएमसीजी कंपनीज का जो ग्रोथ रेट रहता है, अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोलगेट एंड ऑल, ये सारी रोज की बेसिक नेसेसिटीज की चीजें बनाती हैं, तो दे आर लाइक क्रैश प्रूफ. हिंदुस्तान यूनिलीवर का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे हिस्ट्री में, पूरा चार्ट जो कि हम टेक्निकल चार्ट में देखेंगे कि कैसा ओवरऑल इट हैज परफॉर्म, इट हैज डन वेल. तो जो कंपनी नेसेसिटीज बनाती है, जो कि लगने वाली चीजें है, तो दे टेंड टू हैव हायर पीई मल्टीपल्स, उनकी कमाई में विजिबिलिटी रहती है. ठीक है, इट हैज गिवन अ वेरी स्टेडी रिजल्ट्स. अगर मैं एनुअल ये देखूं तो रेवेन्यूज आर स्टेडी, एटलीस्ट स्टेडी, इफ नॉट राइजिंग दे आर स्टेडी. 31,000 करोड़ था जो कि बढ़ के 38,000 करोड़ हुआ है. ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो थे, जो मार्जिन की मैं बात कर रहा हूँ, मैनेजमेंट इज सो एफिशिएंट कि 100 रुपए के सेल्स पे मुझे 20 रुपया मिल रहा था. ठीक है, नाउ दे आर मेकिंग 25 रुपीज, 26 रुपीज. सो ये आफ्टर दिस सेशन ना, अगर ये सेशन बंद हो जाए तो बाद में बीएससी की वेबसाइट, यू फेमिलराइज विद इट, ये पूरा पेज समझ में आ गया ना, तो यू विल बी एबल टू मतलब इजीली अंडरस्टैंड कि कंपनी का चल क्या रहा है एग्जैक्टली, भाव क्या, प्राइस मल्टीपल्स क्या, बुक वैल्यू कैसा है कंपनी का. अगर मैं ये 12 टाइम्स का बुक वैल्यू चल रहा है ना, इसका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 12 का है. अच्छा चलो एक मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछता हूँ. अगर प्राइस टू बुक वैल्यू 12 टाइम्स है और भाव 23.98 है, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का बुक वैल्यू कितना होगा? Can anyone unmute himself and tell exactly, या फिर चैट बॉक्स में you can write it up. अगर इतना प्राइस टू बुक 12 रुपए का है, हिंदुस्तान का भाव 2398 का है, तो व्हाट विल बी द बुक वैल्यू?
क्वेश्चन, वेयर कैन वी फाइंड सेक्टर पी ऑन BSE? सेक्टर पी अपने को इसमें मिलेगा, NSE की वेबसाइट में मिलेगा. आई लुक आउट एक सेकंड. सेक्टर पी, I don't think that detail is available. We'll have to go in detail and check on the NSE website. But right now I have asked a question कि अगर प्राइस टू बुक वैल्यू 12 टाइम्स का है और भाव 2398 का है, तो एग्जैक्टली बुक वैल्यू कितना है इसका? प्राइस टू बुक वैल्यू आई थिंक 198.58. किसी ने कैलसी मारा है. Exactly. Nishant has given the right answer, or 198. Ruchit also has come up with the answer. अरे सिंपल है, ये रेशो है. ये रेशो है, ठीक है. तो अभी ये 12 टाइम क्यों हुआ है? क्योंकि 200 रुपए की चीज को अगर 12 टाइम में दे रहा हूं तो ऑब्वियसली नेचुरली इट विल बी 2400 का भाव है, ठीक है. See, this PB is high for the quality companies only. कचरा कंपनीज को इतने ज्यादा वैल्यूएशंस नहीं मिलते हैं, ठीक है. रिटर्न ऑन इक्विटी 15% इज गुड. सो नटशेल में बोलना ये था, ये सारे रेशियो दिखाने इसके पीछे का लॉजिक यही था कि ओवरऑल अगर आप कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, योर हार्ड अर्न मनी, so I think before buying a mobile, if you are able, if you are searching so much कि कौन सा exactly ज्यादा अच्छा रहेगा या फिर ये, तो before buying a stock, I think these are the basic things that we can check as an investor, ठीक है. This all things is coming under investment कि मुझे एक कंपनी में XYZ इन्वेस्ट करना है. Just because somebody has told you कि नहीं ये कंपनी अच्छा है, you should not buy that company unless you have studied about it, because you should be on the driving seat, you should not be a passenger. Can you simplify PV ratio? सुखदेव जी, ये बुक वैल्यू क्या होता है? बेसिकली बुक वैल्यू होता क्या है? कंपनी का अकाउंटिंग वैल्यू है, ठीक है. कल को कंपनी बंद पड़ गई ना, तो ये टर्मिनल वैल्यू रहेगा कंपनी का, ठीक है, 200 रुपया. एसेट, कंपनी का जो भी एसेट है माइनस लायबिलिटीज इज द कंपनीज बुक वैल्यू. वो कितना है? 200 रुपया है. तो हर 200 रुपये के पीछे इन्वेस्टर बेट कितना कर रहा है? 12 रुपए बेट कर रहा है, ठीक है. अगर कंपनी का 200 का बुक वैल्यू है ना, वैल्यू है बुक का, तो चलो मैं 12 टाइम्स पैसा डाल सकता हूँ उसमें. दिस इज स्लाइटली एक्सपेंसिव. 12 टाइम्स का बुक वैल्यू और कंपनी इज स्लाइटली एक्सपेंसिव, तो मैं उतना बेट करना चाह रहा हूँ. बुक वैल्यू इज बेट. कंपनी का भी हिंदी में क्या बोलूं? हिंदी में बोले तो वो हिंदी औकात. बुक वैल्यू इज औकात बेसिकली. दिस इज व्हाट द कंपनी इज एक्चुअली वर्थ, बट द इन्वेस्टर इज बेटिंग 12 रुपीस फॉर दैट, ठीक है. और this page is clear because I will move on to then technical analysis. अगर इसको किसी में डाउट है तो you can unmute yourself or you can write it in the chat, क्योंकि अपना मेन थीम तो आज टेक्निकली था. I felt this is important, that's why I took it. Riaz, hi, Gaurav here. तो ये P पे भी मतलब again what is प्राइस अर्निंग रेशियो जो है, व्हाट इज द गुड पी? या मतलब समटाइम्स जैसे कि मतलब पी ज्यादा है, बहुत ज्यादा प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स, तो नहीं, ये नेचुरल, मतलब ये बुक्स में ऐसे दिखाते हैं कि 30 के ऊपर का पी एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, और 10 वाला मतलब सस्ता होता है. मतलब बुक्स में क्या बोलते हैं कि 10 पे पी आएगा, मतलब प्राइस गिर के अगर पी 10 पे आता है तो यू शुड बाय इट, और 30-40 चला जाता है तो बेचो. बट वो पी का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर कंपनी कमा रही है, ठीक है, कंपनी का ग्रोथ प्रोजेक्शन बहुत ज्यादा है. राइट नाउ इफ इट इज कम अर्निंग 10 रुपीज, और 2020-22 में मुझे लग रहा है कि 10 रुपए का कंपनी 25-30 रुपया कमा सकती है. तो इन्वेस्टर वो 2-3 साल की कमाई को लेके आज उसमें बेट करता है. if that valuation, like वो 10 रुपए कमाने का ताकत 10 का 15 का 20, अगर कंपनी इज नॉट एबल टू सस्टेन, कमा नहीं पा रही है, दैट इज वेयर द रेट्स क्रैश. अर्निंग उतना कर ही नहीं पा रही है कंपनी, तो रेट्स पे असर पड़ता है कंपनी में. ओके, इज इट क्लियर सर? हाँ, मेक सेंस. हाँ, ज्यादा पी कम पी वो वाला कॉन्सेप्ट छोड़ दो. अगर कंपनी में ग्रोथ है ना, तो पी कैन बी, अभी मैं बताता हूँ, एक सेकेंड ना. ये नौकरी का है, ठीक है. व्हाट इज द पी? 242 टाइम. 242. कंपनी का एक शेयर के पीछे आता कितना है? 20 रुपया.
अभी इसका वैल्यूएशन इतना ज्यादा क्यों है, 250 टाइम्स का पीई क्यों है? बिकॉज अगर आप रिजल्ट्स में जाओ तो एक सेकंड, ओके, 700 करोड़ का ये था कंपनी का 2016 में, ठीक है? तो 2020 में कितना हुआ? इन अ मैटर ऑफ 1 2 3 4 5 कितना हुआ? 1200 करोड़ 1300 करोड़ ऑलमोस्ट। 1300 करोड़। आर यू एबल टू सी द ग्रोथ? अभी कोई आके उठ के बोलेगा यार 200 के पीई पे इन्फो एज क्यों खरीदना है? बिकॉज दिस इज द थिंग ना, 4 साल में अगर कंपनी का रेवेन्यू लगभग डबल हो रहा है तो व्हाई द पीई शुड नॉट बी हायर? तो दिस इज द रीजन आई विल स्लाइटली डिसएग्री टू दैट एक्सपेंसिव पीई और सस्ता पीई। सस्ता वस्ता कुछ नहीं रहता। अगर मार्केट में कंपनी पैसा बना रही है ना तो इन्वेस्टर विल हैव टू बेट ऑन दैट। अगर निफ्टी 500 ले लो ना, उसमें से बहुत कंपनियां ऐसी, कम कंपनियां मिलेंगी जो कि ये ग्रोथ रेट सस्टेन कर पा रही है आज की तारीख में। तो वट एवर लेफ्ट ओवर्स लाइक दिस, जिनका ग्रोथ रेट इतना अच्छा है, 700 करोड़ का 2020 में 1200 करोड़ कंपनी कमा रही है, दैट्स अ फेयरली वेरी गुड परफॉर्मेंस आई वुड से फाइनेंशियली। तो दैट इज व्हाई द पीई इज हाई। तो सस्ता पीई महंगा पीई उसके चक्कर में पड़ना ही नहीं। इफ द ग्रोथ इज देयर, मनी विल कम एंड द स्टॉक प्राइस विल गो। ओके, yeah थैंक्स। anyone's got hello? I think someone's saying something I don't understand. Hello, Chaitanya. Anyone's got any other question? You can write it in the chat box, or you can unmute yourself and chat boxes. Are you able to see any questions in chat box, sir? क्योंकि अपने को मेन अपने को आज की मेन नहीं है ना, अभी कुछ नहीं है और कोई नहीं है। मेन थीम पे जाते हैं अपन अपने। दिस फंडामेंटल पार्ट इज क्लियर ना? सी इजी है, पैसा बनना चाहिए कंपनी का, ग्रोथ चाहिए कंपनी में, बॉटम टॉप लाइन बॉटम लाइन, इसको टॉप लाइन और बॉटम लाइन में बोलते हैं। टॉप लाइन, दिस इज कॉल्ड बॉटम लाइन। टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों भी अच्छे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। कंपनी में डेट नहीं चाहिए, ठीक है? इफ द कंपनी इज हाईली लिवरेज, इक्विटी का वैल्यू इतना है x है और डेट 2x है, तो सूनर और लेटर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, कंपनी बर्बाद हो जाएगी। वी हैव मेनी सच एग्जांपल्स लाइक रिलायंस कम्युनिकेशन कैपिटल, एडीएजी ग्रुप का पूरा कबाड़ा डेट के वजह से हुआ है। You can go up with the expansion plans, लेकिन you should not blow up your equity like that. ठीक है, one question. But net profit is reducing. Okay, Sukhdev sir is typing. For which company? This thing. यही वाला I think whatever you showing. यही वाला 200. नहीं, ये कंपनी फ्यूचर फेसिंग है ना। राइट नाउ हाउ मेनी पीपल आर एनरोल्ड ऑन इन्फोएज? अगर आप नंबर ऑफ रिज्यूम्स देखोगे इन्फोएज की साइट पे, तो दे आर एक्स अमाउंट। Actually, it may be because of COVID also. नहीं, someone is right because चलो otherwise it is growing only. या नहीं, 2020 का मैं छोड़ दूं तो देयर इज अ डिप आफ्टर 2017, राइट? 2017 और 18 के बीच में भी एक छोटा सा डिप आया हुआ है। तो ही इज राइट ऑन दैट पार्ट, थोड़ा सा रिड्यूस होके वापस रिबाउंड किया है, ठीक है? 900 करोड़ का था, 1000 करोड़ वापस से किया हुआ है। मे बी सम वन टाइम एक्सपेंस उन्होंने मारा रहेगा किसी चीज का, बट ओवरऑल द रेवेन्यू ट्रेजेक्टरी इज ऑन द अपवर्ड साइड, ठीक है? दैट इज द रीजन। और ये कंपनी अच्छी है। इफ एनीबॉडी वांट टू एक्यूमुलेट ना, आई फील दिस इज अ वेरी ग्रोथ स्टोरी। Otherwise, we'll have to we have to check both the things, na? Net profit and revenue. Yeah, everything we have to check. क्योंकि क्या है, खाली टॉप लाइन बढ़ने से मतलब नहीं है। मैनेजमेंट ये अपॉर्चुनिटी को यूज कैसे कर रहा है? मान लो ये बढ़ रहा है, ठीक है, बट हाउ दे आर यूटिलाइजिंग, हाउ एक्सपेंसेस आर मैनेज्ड, कैसे मैनेज कर पा रहे हैं एक्सपेंसेस को? और कंपटीशन का भी होता है ना, कि अगर मान लो रेवेन्यू आ रहा है, बट बिकॉज कि आप अपने प्रोडक्ट को पुश कर रहे हो, तो इट माइट ईट अवे मार्जिन भी ऊपर की तरफ चाहिए। तो फंडामेंटली अगर कंपनी पैसा कमा रही है, बॉटम लाइन यस हेलो या इफ द फंडामेंटली कंपनी इज मेकिंग मनी, ऊपर ही जाना है, won't come down. You show me a company जिसका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, रेवेन्यूज ऊपर की तरफ है, बट 5 साल से परफॉर्म ही नहीं किया। You tell me the name of the company.
देयर वोंट बी अ कंपनी जो 8-10 साल अंडर परफॉर्म करे मार्केट में, जिसका ग्रोथ अच्छा है और मार्केट को अंडर होगा ही नहीं है। एक सेकंड ना, I'll put everyone on mute mode, एक सेकंड। ठीक है, you can unmute yourself whenever there is a question. Just a second. Okay, so coming back to the presentation, I hope the fundamental part is clear. Those were the thing that we should look out for. अभी हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर जो आज का फोकस है। रीजन व्हाई आई हैव स्पेंट सो मच टाइम ऑन फंडामेंटल बिकॉज इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। बीएससी के साइट पे जाना है, परफॉर्मेंस देखनी है, एनुअल रिपोर्ट देखना है, भाव देखना है, तो दैट इज हाउ यू गेट द होलिस्टिक आइडिया अबाउट अ कंपनी। मतलब आसान हो जाता है आपको खुद से जज करने में कि यार पैसा कमा रही कंपनी या नहीं कमा रही, कमा रही तो डालना है, नहीं कमा रही तो नहीं डालना। सिंपल, प्लेन एंड सिंपल। तो आज अपने मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं, टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस कुछ नहीं है, बेसिकली यू based on the price and the volume and the historical data, you try to make conclusions. This is what the bookish meaning of technical analysis is. ठीक है, whenever you load up a chart, ठीक है, अभी इसको बंद कर, फंडामेंटल एनालिसिस ओवर। इसके ऊपर कोई क्वेश्चंस रहेगा तो यू कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स। ठीक है, अभी आते हैं अपना मेन कोर जो टॉपिक था टेक्निकल। ये टेक्निकल का हम लोग क्या करते हैं, एक बार ये पूरा सेशन ले लेते हैं एंड आफ्टर दैट वी विल अनम्यूट समबडी एंड आस्क हिम टू ट्रेड। एक मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है जहां पे रेट्स विल फ्लक्चुएट एंड दैट पर्सन विल ट्राई टू प्रिडिक्ट द रेट ऑफ दिस थिंग, हाउ ही विल मैनेज हिज रिस्क एंड ऑल। ठीक है, so should I move ahead with the technical this thing, or anybody's got any question? You can write it in the chat box or you can unmute yourself. Gaurav sir, are you able to unmute yourself? I can, Riaz. Can you hear me? So anyone who's got a question, he can unmute himself. So that right Sure. is there, na? Otherwise I will have to manually this thing. ठीक है, I don't think there is a question. Chat box में लिखिए if there is any. Okay, I think there is a question. ठीक है, चलो we'll move ahead with the technical analysis. कुछ नहीं, एक सेकंड ना, मैं ये बंद कर देता हूँ। Start using investing.com. ठीक है, once I open up the investing.com, मुझे अगर किसी का कंपनी का चार्ट देखना है, say for example TCS, मैंने TCS का ओपन किया है, I'll go to technical chart section. यहाँ से इसको बड़ा कर सकते हैं, मतलब चार्ट अगर देखना है इसका तो मैंने TCS टाइप किया ऊपर, I come down, तो ये मैंने इसको बड़ा कर दिया चार्ट। बेसिकली whenever you are doing technical analysis ना, आप हमेशा स्टॉक को जूम आउट करिए, जो भी है एक प्राइस ट्रेंड एक 2-3 साल का एक बार देख लीजिए, क्या ट्रेजेक्टरी एग्जैक्टली कहां से सपोर्ट ले रहा है, कहां से क्या कर रहा है। वंस यू जूम आउट द चार्ट, थोड़ा सा उसमें से नॉइस कम कर दो कभी भी। दिस इज अ डेली चार्ट, देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइस। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय रिड्यूसिंग अ नॉइस? चार्ट का टाइम फ्रेम बढ़ा के देख लो एक बार। ठीक है, वंस आई क्लिक ऑन द दिस थिंग, एक बार कैंडल स्टिक का ये कर देते हैं हम लोग, दीज आर द कैंडल स्टिक। ठीक है, एक बार एक बेसिक आइडिया आ जाता है हाउ द प्राइस हैव परफॉर्म्ड, वेयर इज इट ऑन द राइजिंग ट्रैजेक्टरी, देन करेक्ट, दिस इज ये फॉल तो आप भूल ही जाओ, दिस इज अ वन ऑफ काइंड ऑफ अ क्रैश which we may not see in the future because it had almost wiped off 50% of the company, so you may not see it again, or who knows, we might have this kind of event in the future, but I'll tell you how to identify that also. ठीक है, एक आंखों को एक दिखता है ना कि एक फ्रॉम 2019 के पीक से यहाँ पे कंपनी ने रेजिस्टेंस लिया था, दिस 1 2 3 4 5 6, पर क्लियरली एबल टू विजिबल। अगर ये टूटता है तो ऑब्वियसली स्टॉक प्राइस हैज टू गो अप बिकॉज देयर इज सो मच सप्लाई एट दिस लेवल यहाँ पे जो कि इजीली आइडेंटिफाएबल है।
तो यहाँ पे इतना सारा सप्लाई था, तो नेचुरली इट मींस कि अगर ये भाव टूटता है ऊपर की तरफ, आई विल ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन ओवर हियर, ये भाव हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। मैं यहां से अगर ये लगाता हूं यहाँ पे, ठीक है, नेचुरली इट मींस एज सुन एज दिस हाई इज ब्रोकन आउट, जो कि यहाँ पे हुआ था, after that you have seen a one side rally in a TCS up until from 2200 to 3298. So that is the reason I'm asking you to always zoom out a chart, थोड़ा सा noise cancellation डाल दो उसमें, जो कि मतलब rising the period, increasing the period, weekly chart पे देखो, then monthly charts, exactly एक clear cut idea तो आ जाता है कि how the company has performed. See, price is the best indicator. Lot of technical analysis use MACD, RSI, which I'll teach you how to use, but the best indicator to use is the price. Price knows everything, like whatever is the reflection of any internal or external party, बड़ा आदमी है, छोटा है, कोई बड़ा institute है, his intention will be clear out in price, so wherever he wants to go. So there are basically okay, कैंडल स्टिक्स पे आता है एग्जैक्टली फॉर दोज हु आर न्यू, ये रेड क्या है, ग्रीन कैंडल कब बनेगा, रेड कैंडल कब बनेगा, कब बोलेंगे बुलिश है, कब बोलेंगे बेरिश है। सी, हर एक कैंडल का मतलब एक पैटर्न बन जाता है कि ये बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट आपने टीवी पे सुना होगा कि नहीं, ये मोरोबोजू बना है, मॉर्निंग स्टार बना है, हैमर बना है, ये बना है, वो बना है। सी, एज यू अंडरस्टैंड कि दिन के या वीक के या मंथ के मोमेंट में हुआ क्या है, हु वाज मोर पावरफुल, कौन प्राइस पुशअप कर रहा है या कौन प्राइस गिरा रहा है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वो कैंडल को इंडिविजुअली क्या बोलते हैं, हैमर है, क्या है, इट डजंट मैटर, ठीक है। तो हमको क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैंने 100 रुपए का टाटा मोटर्स लिया वो टाइम पे, बैक देन, ठीक है। तो दिन की शुरुआत उसकी 100 रुपए पे हुई, एंड दिन की जैसे ही शुरुआत हुई, जब मार्केट स्टार्ट हुआ, इट मेड अ लो, देन इट जंप्ड अप। सो अपने ओपन से यहाँ पे क्लोज हुआ, 105 रुपए पे क्लोज हुआ, प्रायर टू क्लोजिंग एट 5 रुपीज इट वेंट अप हाई, लाइक 106-7 रुपए गया, एंड फाइनली इट सेटल्ड ओवर हियर, ठीक है। तो देन वी कैन से कि ये बुलिश कैंडल है, कि आज का जो ओपनिंग रेट से टाटा मोटर्स का भाव ऊपर क्लोज हुआ है, क्योंकि वो ओपन से ऊपर क्लोज हुआ, ठीक है। सेम केस, टाटा मोटर्स का शेयर प्राइस खुला था इधर 100 रुपए पे, ठीक है, इट ओपनड एट 100 रुपीज, it went down, it made a low of some 95, नहीं, before after opening it made a high of, say for example 100 रुपए पे खुला है, 101 रुपए का हाई बनाया, and after that it started falling, and because of the intense fall 94 का लो बनाया, and finally it closed at 95, 96. so that is how I say कि ये कैंडलस्टिक में बुलिशनेस है और बेयरिशनेस है। अब ये मल्टीपल कैंडलस्टिक आके पैटर्न बनते हैं, तो as long as you know who pushed up the prices or who brought the prices down, that is more important. कैंडल के नाम आप कुछ भी रख दो, but as long as you understand कि आज ज्यादा पावरफुल कौन था, तो that is more important. नेक्स्ट है ना, हम लोग प्राइस चार्ट में जाते हैं। अगर आप चार्ट को देखो, वॉल्यूम इज अनदर इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। तो कोई भी रेट अगर कंसोलिडेशन से अगर ऊपर जाना है, अगर मान लो ये, अगर मान लो जस्ट सेकंड, अगर मान लो टीसीएस का मुझे ये करना था, विदाउट वॉल्यूम कंफर्मेशन कोई भी बड़ा ब्रेकआउट आता है तो इट वोंट सस्टेन, इट हैज टू बी बैक्ड बाय अ वॉल्यूम, वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। सो दिस इज द प्राइस चार्ट एंड दिस आर द वॉल्यूम्स। ये सिंपल प्लेन है, अगर आप इसको डिलीट मार दो तो मोस्टली क्या करो, वेरेवर यू आर सीइंग डूइंग एनालिसिस ऑन एनी स्टॉक, तो चार्ट में बिना कुछ, Can you repeat what you said about volumes? See, अगर कोई बड़ा ब्रेकआउट आता है स्टॉक में, ठीक है, एंड इफ द वॉल्यूम्स आर नॉट सपोर्टिव, तो यूजुअली इट विल नॉट सस्टेन unless and until there is a bigger volume, मतलब कोई भी बड़ा प्राइस, if you have to take out a bigger price, say for example ये इतना बड़ा रेजिस्टेंस था टीसीएस का 2200 के आसपास, unless and until there is some volume activity, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो there is a volume expansion over here,
एवरेज से ज्यादा था वॉल्यूम। यहाँ पे इन ब्रेकआउट्स में वॉल्यूम था, इफ यू लुक एट दिस, यहाँ पे, so this is how the volumes play out, ठीक है। अब this is a simple a plain price, मतलब without using the indicator, प्राइस क्या है, तीन ही तो तरीके प्राइस में, या तो लोअर लोज लोअर हाइज बना के एक डाउन ट्रेंड बनाए, जो कि यहाँ से टूटा था, लोअर लोज लोअर हाइज, ठीक है, दिस इज डाउन ट्रेंड, दिस इज अप ट्रेंड, हायर हाइज एंड द हायर लोज, और इट कैन गो इनटू साइडवेज मूवमेंट, ठीक है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, ऊपर जाके नीचे, दिस इज कॉल्ड साइडवेज मोमेंटम, दिस इज डाउन ट्रेंड एंड दिस इज अपसाइड, ठीक है। When the price starts making higher highs, that is where a trader should look out for the long opportunity. Say for example, अभी भाव इतने दिनों बाद ये हाई टूटा है 28,118 का, this is where, so I can make a conclusion, okay, volume भी है आज, so why not I buy at this price and put a stop loss over here, जो भी उसका swing low था, यहाँ से यहाँ तक का है मेरा रिस्क, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ उसे, so this will be my stop loss and I'll keep the target open. See, कभी भी ना, always अपना जो position size है, say for example, now this is from the trading perspective, this is not the analysis, this is called money management. Money management, if I have got 5 lakh rupees, ठीक है, now without using the leverage, I'm totally against leverage whenever you are trading in the market or doing technical analysis or this thing, never use leverage. Always use your own capital, and that is where more stability will come. And if you have bought something in the market and that is making you restless, or you are feeling like if the rate comes down, if there is any fear, then I think you have made a mistake, that you have bought more than what you can handle. Always stay in your risk appetite if you're trading. Never try to be a bigger bigger position and try to trade, because whenever the market reverses like this, say for example, I am a trader, I bought 5 lakhs rupees मेरे पास है, and I have bought this here at what 2200 पे मैंने TCS लिया था, ठीक है, 5 lakhs I have a capital, and I have built a position for 10 lakhs. All of a sudden stock price rises, I do not have any risk management, I am not able to maintain the stop losses. Then what happens over here? I know the TCS stock is good, we have done the fundamental just now, the growth is good, every other thing is good about TCS, but whenever there is a fearful environment, you never know what kind of rates the stocks might show you. Now 22,000 से all of a sudden it has any site that helps in analyzing one's risk factor. Any site, okay, someone has asked me ki, is there any site wherein someone can see his risk appetite? No sir, this will you come to know out of experience. You take a position in the market and you will come to know ki exactly what kind of risk you are able to handle. आप अगर मंडे को आपने अगर रिलायंस खरीदा होता लाख रुपए का, all of a sudden the price has crashed to some 5-6% से गिरा, so you'll come to know how much quantity you can handle. See, trading में ना आपको अगर डर लग रहा है, if you have taken a position and you're fearing the price might come down, so you need to reassess your risk management, ठीक है, 1 लाख पे मुझे कितना नुकसान होगा, तो आई एम ओके विद दैट, दैट इज व्हाट द ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट, दैट्स फॉर मनी मैनेजमेंट. टेक्निकल एनालिसिस इज ओके, सी ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट स्टेइंग विद द ट्रेंड. जो ट्रेंड चल रहा है चालू में, as long as it is there, I'll build a position. I will not mind buying TCS now, because यहाँ से जो ट्रेंड शुरू हुआ है after a slight correction, it is still going on. I want to ride this trend. If at all any pullback comes in like this, whenever stock is rising and there is some sort of this and it has taken a support, so unless and until this low is taken out, I'll ride this trend, ठीक है. See for example, after this pullback, I have built my position over here after this high is taken out, and this is going on. So stock did not come back to this level. Na? This is this thing, and I'll ride this one. How can I ride this? Unless and until I have taken a quantity that is within my risk, I can ride this one, because small fluctuation will make me restless. अगर stock 5% भी गिरता है,
तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी कि अरे यार ये तो गिर रहा है, ऑल ऑफ अ सडन मैंने लीवरेज ले रखा है एंड ये यहाँ से करेक्शन यहाँ तक आया, क्योंकि ये छोटा करेक्शन नहीं है, 28 का स्टॉक सीधा 2600 पे 300 रुपए गिरा है स्टॉक. सो अनलेस एंड अनटिल आई एम माय एंट्री एंड एग्जिट्स आर डिफाइंड, तो मुश्किल हो जाएगी ना उसमें. तो दिस इज हाउ यू डू प्लेन प्राइस एनालिसिस. अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, आज का जो फोकस पॉइंट था MACD, RSI, मूविंग एवरेज, ये तीन चीजें हम लोग सीखेंगे. और कुछ हाउ टू मतलब एग्जैक्टली अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो एग्जैक्टली स्टॉक सिलेक्ट कैसे करना है. फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, पहले ये इंडिकेटर्स ये कर लेंगे, बहुत इजी है. ठीक है, MACD ऐसा कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं होगा जो ये इंडिकेटर यूज ना करता हूँ. जस्ट अ सेकंड. Sorry about that. Are you able to hear me, Gaurav sir? Hello. Yes, yes, Yeah, I can yeah. hear you. I'm sorry about that. Okay. No problem. MACD पे आता है ये तीन इंडिकेटर. सी काम की बात में हम लोगों ने क्या किया है कि बहुत सारे इंडिकेटर्स है, बट ओनली दीज थ्री आर वेरी हेल्पफुल. उसी के लिए आप कट द क्लटर एंड ओनली सिलेक्टेड 2-3 इंडिकेटर्स जो कि बहुत ज्यादा यूज होते हैं. ठीक है, उसमें से MACD एक है. ये बेसिकली मोमेंटम इंडिकेटर है. यहाँ पे हम लोग उसको डिकोड करेंगे कि उसको यूज कैसे करना है. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने MACD लगाया हुआ है किसी प्राइस में, ये दो लाइनें रहती है, ब्लू लाइन एंड द रेड लाइन. ये रेड लाइन है ना, ये स्लो रहती है एंड द ब्लू लाइन इज फास्टर वन. दिस इज द MACD लाइन. ठीक है, whenever there is a cross, blue line cutting over the red line, so that is where the buy momentum is created. And whenever the blue line like MACD line cuts the signal line from above, so that's a negative signal you would say. ठीक है, the best use is, so whenever ये line अगर आप this is called a zero line. हाँ, ये दो लाइन जो है like averages, this is called a zero line. Above this the momentum is positive. Wherever this happens na, this and this, whenever it goes above these things, that means positive momentum is building up. हम लोग लगाते हैं इसको इस पे. ठीक है, यहाँ पे investing.com पे हम लोग जो चार्ट ओपन किए थे, एक सेकंड. I think आप वो शेयर नहीं कर रहे यार. investing.com ये स्लाइड. हाँ, now it's visible. ओके, अभी यहाँ पे मैं आ गया. मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे MACD लगा देता हूँ. ठीक है, ये मैंने MACD लगाया. ठीक, यहाँ से वो जो मार्च का जो हो गया. आफ्टर दैट इट गिव अ बाय सिग्नल ओवर हियर. भले ही उसके बाद प्राइस गिरा था, बट दिस लाइन डिड नॉट क्रिस क्रॉस ईच अदर. ठीक है, आफ्टर गिविंग अ सिग्नल and it went above the zero line. So if I am a technical trader, एक second, I'll put everyone on mute. Just a second. I'll put everyone on mute. Huh? I'm still getting some noises. Gaurav sir? I am also. I think somebody is just Avinash or somebody is just unmuting. I don't know if they're trying to unmute and ask a question. Okay. Yeah, now I think it's on mute. I think अब हो जाएगा. नहीं, एक second. There's no question in the chat section. No? Okay. ठीक है. So after the March का crash, ठीक, MACD gave a buy signal and it remained above the zero line. ये जो line है ना, ये वाला, this is called zero line. Below this is the negative sentiment, above this is the positive sentiment. So always look for such sort of crosses wherein जो ये momentum changing है, moment. Okay, how did you start the MACD line? Okay, चलो मैं delete कर देता हूँ MACD को. I go over here sir, indicators, ये वाला सेक्शन, चार्ट ओपन करने के बाद इंडिकेटर्स में जाना है एंड पुट MACD. यहाँ पे क्लिक करो तो MACD ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है प्राइस पॉइंट के.
ओके ओके ठीक है। ये करने के बाद आफ्टर द क्रिस क्रॉस ऑलवेज लुक फॉर द क्रॉसेस एंड दिस थिंग। ये जो नीला लाइन है ना वो लाल वाले के ऊपर होना चाहिए। आई विल नॉट गो इनटू द मैथ्स ऑफ एमएसीडी। अपने को वैसे नीला लाइन, पीला लाइन, जीरो लाइन, सॉरी नीला एंड द रेड एंड द जीरो इज इंपॉर्टेंट। अब एक if they are crisscrossing each other and the blue line is above red line, there is a positive signal. ये उल्टा अगर ये करता है, if it crisscross from the above, ये negative signal है. That's why the price have crashed. See, prices have crashed from 2900 till it went to 2600. 300 points का ये मिल गया. Then again it crisscrossed each other because this high was taken out. 2900 का high it took out, and after that the bullish sentiment was there. It's easy basically. The crosses are the important points. Zero line is very important. Zero line के ऊपर if this happens, this is very positive. Huh? अगर ये हुआ after a sudden fall, this thing happens, price is responding and these lines are above zero line, so this will be taken as very, very positive. So this is the one, this is the MACD. Now we'll go to the next thing, which is RSI, relative strength index. So I'll go back to the charts again. Okay, I'll delete MACD. I'll start using RSI, relative strength index. This is a widely used indicator. This basically tells you the average gains divided, अगर उसका हम लोग ये देखें mathematical formula, this basically doesn't do anything. Simple form में अगर समझना है इसको तो average gains divided by average loss. कितना नुकसान हुआ है, कितना फायदा हुआ है 14 दिन के एवरेज में. This is what it tells you. ठीक है. RSI का ना direction is very important. Say for example from above it is going down, it's negative. Once it goes above 50 na, these points, you will suddenly see a bigger price actions. 50 के ऊपर अगर जाता है तो you will not see a muted this thing. यहाँ पे अगर देखा जाए, once it crossed 50 line, you will see a bigger pricing days. So always look out for the stocks from जो RSI मान लो X था, 50 was the RSI, and all of a sudden their RSI have changed to 50 plus. So you should look out for the stocks. This is very important. और अगर किसी को शॉर्ट करना है मार्केट में तो RSI जिसका 50 के नीचे आया है तो उनका तो ऑब्वियसली नेगेटिव सेंटीमेंट होता है. तो लुक आउट फॉर दोस अपॉर्चुनिटी. डायरेक्शन ऑफ द RSI इज इंपॉर्टेंट. एक से प्लीज रिपीट. नॉट एबल टू सी 50. I think I have to share that investing.com site, Riyaz. I think वो PPT दिख रहा है सबको. Okay. So sorry. Are you able to see? अभी दिख रहा है? Yes. So sorry, मैं भूल गया था वो भी शेयर करना है. Okay, simple है, plain है. RSI का डायरेक्शन हमेशा इंपॉर्टेंट है. टेक्निकल एनालिसिस में हमेशा RSI का डायरेक्शन शुड बी ऑन द हायर साइड. प्लीज एक्सप्लेन अगेन MACD. ओके करता हूँ एक सेकंड. RSI खत्म करके वो करता हूँ वापस. ठीक है. ये डायरेक्शन अपवर्ड ऊपर की तरफ होना चाहिए. ऊपर से नीचे आता है तो बाय मत करना, बिकॉज दैट कैन लीड टू अ प्रॉब्लम. क्योंकि यहाँ से अगर प्रभाव टूटा था तो आप गिरते RSI में ले रहे हो, यू माइट ट्रैप्ड इनटू समवेयर. ठीक है. तो इसका ट्रेजेक्टरी ऊपर की तरफ होना चाहिए ऑलवेज. डायरेक्शन It means you always buy in a upward trend. In other words. या वो तो है ही है. बट नीचे से अगर 30 का RSI अगर 50-60 के ऊपर जा रहा है ना तो ऑब्वियसली समथिंग गुड इज बिल्डिंग अप इन द स्टॉक. दिस इज वेयर यू सी ब्रेकआउट्स. अगर आप देखोगे टाटा मोटर्स का, सी जो बड़ी चीजें है आफ्टर ब्रेकआउट, यहाँ से एक ये था उसका. ठीक है. ये रेजिस्टेंस था 200 रुपए का. वंस इट ब्रोक अबाउट 200 लेवल्स, यहाँ से एक छोटा सा करेक्शन आया था टिल 40. RSI देखो 40 से कितना चला गया, 40 से 60 पे आया. आई टोल्ड यू ना कि जब भी ये RSI 50 के ऊपर निकलता है ना, यू विल स्टार्ट सीइंग अ बिगर मूव्स लाइक 5-6% का. ये 2-3% गया था स्टॉक एक दिन में. You will all of a sudden you start seeing जो 200 का स्टॉक है 10-15% चल गया. So you always look out for something wherein RSI has gone above 50 or बहुत ज्यादा हो जाता है. This is too much risk. 90, 99 is too much risk.
आप यहाँ पे पकड़ो स्टॉक 50-60 के आसपास अगर मिलता है ना, दैट विल बी अ जोन कि वो अच्छा है, मतलब ले सकते हो, बड़े बड़े प्राइस मूव मिल सकते हैं। ठीक है, 50 के ऊपर आरएसआई का एक ही चीज याद रखना, 50 का जो न्यूट्रल लाइन है, ये न्यूट्रल लाइन है, यहाँ पे आपको कोई सिग्नल नहीं मिलेगा। ठीक है, नीचे से अगर 40 से 50 यस 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 it will be visible before breaking its resistance, or it will be visible after breaking the resistance only? नो लाइव बेसिस व्हेनेवर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ये था, ये दिन को छोड़ दो, मान लो ये ही दिन चल रहा है, वी गो बैक इनटू द पास्ट, ये दिन चल रहा है, दिस वाज दी, दिस इज हाउ द स्टॉक हैज परफॉर्म्ड ऑन दैट डे, कितना 170 164 पे क्लोज हुआ था। ठीक है, आफ्टर क्लोजिंग ऑन 164 व्हाट वाज द आरएसआई, 164 पे बंद था, आरएसआई कितना चला गया 41। ठीक है, नेक्स्ट डे काइंड ऑफ डोजी काइंड ऑफ कैंडल बना, डोजी नहीं बोलूंगा, ये डोजी ही है। ठीक है, यहां से प्राइस कितना बढ़ा, 169 का हुआ, ये क्लोज कितना था 164 169 से, देन आरएसआई स्टार्ट्स गेटिंग मोमेंटम। सी एट द एंड ऑफ द डे ना, प्राइस, ऑल दीज इंडिकेटर्स आर द डेरिवेटिव ऑफ प्राइस ओनली। ठीक है, भाव जैसे जैसे ऊपर आ रहा था, आरएसआई इज इंप्रूविंग, ऑल ऑफ अ सडन व्हेनेवर इट क्रॉसेस 60, बड़े बड़े मूव्स आपको वही मिलेंगे। ठीक है, दैट इज द बॉटम लाइन, 50-60 के ऊपर अगर जाता है तो दैट इज वेयर यू विल सी अ वेरी गुड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, दैट इज वन। एक सेकंड, कोई चैट बॉक्स में कोई है मैसेज, एक सेकंड। ठीक है, विल कम बैक टू एमएसीडी, ये मैं हटा देता हूँ, आरएसआई यही से ऐड करना है। ठीक है, एमएसीडी, सिंपल है। एमएसीडी में क्या होता है, ये जीरो लाइन है बेसिकली, ये सेंटर लाइन इज अ जीरो लाइन, ये नीला लाइन इज एमएसीडी लाइन, ये छोटा वाला जो दिख रहा है, ये जो रेड वाला, दिस इज सिग्नल एंड दिस इज एमएसीडी। ठीक है, ये होता क्या है, ये क्रॉसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इसमें, व्हेनेवर नीला वाला लाइन लाल वाले लाइन को नीचे से काटता है, व्हेनेवर इट क्रिस क्रॉसेस द रेड लाइन फ्रॉम बिलो, इट गिव्स अ बुलिश सिग्नल, और एंड एग्जैक्टली ऑपोजिट, ऊपर से अगर कट करता है द ब्लू लाइन रेड लाइन, slightly negative signal, but as long as this thing does not sustain below this, the momentum is positive. Zero line के ऊपर कभी कोई स्टॉक शॉर्ट नहीं करना है, whenever it goes below the zero line, that is where you find out the shorting opportunity. शॉर्ट सेल करना है तो, बेचना है तो ये देखना चाहिए। ठीक है, खरीदना है, as long as stock price remains above this, you look for the buying opportunities. अगर इसके नीचे सस्टेन करना चालू है तो you look for the shorting opportunities. खरीदना इसके ऊपर ही है। दिस इज वन, द एमएससीडी हो गया। एक सेकेंड, अभी क्या था, मूविंग एवरेजेस, आरएसआई हो गया, मूविंग, अभी मूविंग एवरेजेस देखते हैं। ठीक है, लॉट ऑफ जस्ट सेकंड सर, वी कैन यूज VWAP with MACD, it will be more effective. Yes, but I can see when we do that very detailed session na, that is where we will use the multiple this thing in a single chart. You are absolutely right रघुवेंद्र, you are absolutely right कि आप VWAP यूज कर सकते हो MACD के साथ, बट अभी जो सुन रहा है, if somebody is from the IT background और आज वो सेशन सुन रहा है, तो the way I am explaining in नीला लाइन पीला लाइन and all of a sudden I tell him VWAP, he'll be confused. So I want to keep it simple. तो ये जो है, जो टेक्निकल, ज्यादा टेक्निकल है, we'll cover that in some other day. ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। या वेलकम। उसके बाद हम लोग मूविंग एवरेजेस के ऊपर आते हैं। मूविंग एवरेजेस क्या है, जो प्राइस के ऊपर ही लाइंस बनी हुई होती है, दोस आर कॉल्ड मूविंग एवरेजेस। 5 दिन का एवरेज इज बेसिकली 1 वीक, 10 दिन का एवरेज 2 वीक, 20 दिन का 1 महीना, 60 दिन का 1 क्वार्टर, 120 डे, और ये 200 जो डेली मूविंग एवरेज है, इज कॉल्ड मदर ट्रेंड। हम लोग अगर देखोगे आप, अभी आप लोग मूविंग एवरेज ड्रॉ करते हैं, इसमें एमएसीडी इज ओवर, आरएसआई इज ओवर, विल कट दिस ऑफ एंड स्टार्ट पुटिंग दी एमएस, ये मूविंग एवरेजेस। ठीक है, फ्रॉम हियर ओनली आई हैव एडेड, ये जो दिखता है ना यहाँ पे, तो यहाँ से आप लोग इंडिकेटर्स करके स्लैश करके आता है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने यहाँ पे मूविंग डाला, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल सेलेक्ट किया। सिंपल करना होगा, सिंपल एवरेज तो ये कर सकते हैं, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल तो ये हम लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, आई वांट टू चेंज द सेटिंग्स, मैं यहाँ पे गया, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट 9 दिन का एवरेज ऐड कर देता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं
इसमें ये चेंज कर देता हूँ इसका सेटिंग, मुझे करना है 20 डेज का एवरेज, ठीक है। आई कैन चेंज द कलर ऑफ दिस थिंग ऑल्सो। ये मैंने 20 डेज का किया, ये मैंने 50 डेज का किया, ये मैं डिलीट कर देता हूँ 9 दिन का, ठीक है। तो बेसिकली 20 दिन का जो एवरेज है, मूविंग एवरेजेस भी बाय और सेल इंडिकेटर्स देते हैं। अभी मान लो 20 दिन का एवरेज 50 दिन के एवरेज से कम है, ठीक है। अभी ये लाइंस देखो, ये जो रेड वाला लाइन है ना एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, वो बेसिकली शॉर्ट टर्म एवरेज है, और ये 50 वाला थोड़ा बड़ा है, तो वो 50 वाला जो भी एवरेज रहेगा वो थोड़ा सा स्लो रहेगा, जो रेड है वो थोड़ा फास्टर रहेगा। तो जब भी जो स्लोअर लाइन है, मतलब जो नहीं सॉरी जो फास्टर लाइन है 20 डे ईएमए वाला, जो रेड लाइन में दिखा रहा हूँ, जो कि कम वाला एवरेज है, वो स्लो वाला एवरेज को ऊपर से काटता है, मतलब 20 वाला 50 को ऊपर से काटता है, इट जनरेट्स सेल सिग्नल, ठीक है। यहाँ पे देख रहा है क्रिस क्रॉस। सो व्हेनेवर देयर इज अ क्रॉस, जो फास्टर लाइन एंड द स्लोअर लाइन, 20 दिन का अगर 50 दिन वाले को ऊपर से काटता है तो दैट जनरेट्स अ सेल सिग्नल। और एज लॉन्ग एज द रेड लाइन, मतलब जो फास्टर एवरेज है 20 दिन का, इट रिमेन्स अबाउ द 50 डे, जो भी उसका बड़ा एवरेज है, इट्स अ पॉजिटिव सिग्नल, इट्स अ बुलिश मोमेंटम, यू शुड लुक फॉर द बाइंग अपॉर्चुनिटीज इन इट, ठीक है। टाटा मोटर्स ने आफ्टर क्रिस क्रॉसिंग, I don't think it has closed below a couple of times. It has visited the moving averages, but majority of the time it has been on the higher side of the averages. The price has been rising. So this is how they use moving averages. So you can put any this thing. You can edit it and go back to the 200 moving average. 200 दिन का भी आप लगा सकते हो, ठीक है। वो लाइन थोड़ा सा ज्यादा फास्ट हो जाएगा। What is the 200 day moving average for this thing? 156. Price is at 278. That tells you a lot about the bullish momentum the Tata Motors is having, ठीक है। वॉल्यूम के साथ ऊपर गया था, एंड एज लॉन्ग एज सी दो तीन बार ऐसा हुआ कि 200 दिन के एवरेज पे आके पटका है, ठीक है। मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, तो दिस इज हाउ सपोर्ट के लिए मूविंग एवरेज यूज करते हैं। लाइन के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो यूज करते हैं, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो यहां से अभी दूसरी चीज, अगर मैं आज बैठा हूं 9:15 को, 9:15 में मैंने अपना ट्रेडिंग टर्मिनल ओपन किया है, ठीक है। तो एग्जैक्टली मैं कौन सा स्टॉक ट्रेड करूं और कैसे उसको सिलेक्ट करना है, आई विल टेल यू दिस थिंग। निफ्टी 500, अगर आप एनएससी की वेबसाइट पे जाओगे, इफ यू गो टू द एनएससी वेबसाइट, यहाँ पे एनएससी का वेबसाइट ओपन करता हूं, ठीक है। ये मार्केट डेटा सेक्शन में इंडाइसेस आपको मिलेंगे, ठीक है। द फर्स्ट थिंग यू सी इज ऑल दीज, ठीक है। निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, मिड कैप, स्मॉल कैप। ये मैं बताता हूं आपको द इजीएस्ट वे। जो निफ्टी का 500 है ना, निफ्टी 500 इज द मदर इंडेक्स ऑफ ऑल दीज। अगर आप देखोगे तो निफ्टी का जो पहला 50 कंपनीज है, निफ्टी 500 का पहला टॉप 50 कंपनीज कम्स अंडर निफ्टी 50, देन नेक्स्ट 51 51st to 100 comes in this thing. So this is all division of Nifty 500 only. पहला टॉप कंपनी जो है वो यहाँ पे मिलेगा, निफ्टी 100, 200, 500, निफ्टी मिड कैप, दिस थिंग। ये ऐसा डिवीजन करके रखा हुआ है उनका। जस्ट सेकंड ना, लाइक दिस दे हैव डिवाइडेड। पहले से 100 इज अ लार्ज कैप, ठीक है। 100 to 250 इज अ मिड कैप, और 250 के ऊपर 250 के नीचे जो भी आता है इज टर्म्ड एज स्मॉल कैप। तो whenever you are filtering out something from the Nifty 500 index ना, तो मैं एक सजेशन देता हूँ, एक सेकेंड। पहली बात तो you go to the Nifty 100, then you open Nifty small and mid 400। रियाज आपकी आवाज कट रही है अब। एक सेकेंड ना, my I think internet is not stable, just second।
Actually, I'm connected through this thing. That's why. Okay, so two things I have opened up. एक मैंने निफ्टी 100 का ओपन किया है और निफ्टी 400 मिड एंड स्मॉल. बेसिकली मैंने क्या ओपन किया है, निफ्टी 500 भी ओपन किया है. 100 स्टॉक इधर के आई फिल्टर्ड आउट कि सबसे बड़े 100 स्टॉक जो ऊपर के थे निफ्टी 500 के, वो एक जगह, और निफ्टी. I think I have to share that investing.com again. I can see the PPT only. ओके ओके, यहाँ पे मैंने क्या ओपन किया, ये ब्रॉडर इंडेक्स. Okay, not visible, voice is breaking. So sorry, I think somebody tried to call me, that's why I'm losing the connectivity. तो ठीक है, अगर मैं NSE के वेबसाइट में आ गया हूँ तो मुझे ये दिखेगा, दिस इज ऑल कटिंग शॉर्टिंग ऑफ दी निफ्टी 500 ओनली. निफ्टी 500 के ही टुकड़े करके बनाया है ये सारे ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स, यहाँ से वहां तक. निफ्टी स्मॉल कैप 50 निफ्टी ये, तो मैं इमेज आपको शेयर कर दूंगा इस पे व्हाट्सएप पे. निफ्टी 500 के ही टुकड़े किए हैं उन लोगों ने 50. तो जैसे ही मैं ओपन करता हूँ इसको, निफ्टी 400 का जो निफ्टी मिड एंड स्मॉल, पहले 100 शेयर्स मैंने छोड़ दिए, मैंने उसको अलग से ओपन किया है, और बाकी के जो 400 शेयर है मैंने उनको अलग से ओपन किया है. तो इसमें मुझे अगर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसको क्रोर्स में पहले फिल्टर आउट कर देता हूँ. इस पे मैं क्लिक करता हूँ और पहले ढूंढता हूँ कि पैसा एक्चुअली विच स्टॉक इज गेनिंग अट्रैक्शन इन नॉट वॉल्यूम, इन वैल्यू. ठीक है. और okay, on Monday's session this Shriram Transport gained traction, 4% ऊपर क्लोज हुआ. ओके, 888 crores का ये था उसमें. तो व्हाट आई विल डू, अब ये मैं इसको ट्रैक करना शुरू कर दूंगा. सी, Monday was a weak session, right? In spite of that, this thing went up. ऐसा क्या हो गया इसमें, एक सेकेंड ना. तो आई विल स्टार्ट डूइंग टेक्निकल एनालिसिस ऑन दैट. तो मैं क्या करता हूँ, पहली बात तो अपने इंडिकेटर्स लगा देंगे. ठीक है, कौन सा जो हमने सीखा, MACD and then RSI. ठीक है. Now I know the volume is supportive. ठीक है. What did I check? RSI 50 का क्लोजिंग था, उसके बाद 56 पे गया है. ओके, now I'll zoom out the chart and if you look at the Shriram Transport का ना, एक ही जगह से 4-5 बार रेजिस्टेंस ले चुका है, 1 2 3 4, and this is the 5th time it is trying to revisit those levels. ठीक है. This is the area of supply. Now what, as a trader, what I will do, as soon as this level is taken out, I'll try to look at the buying opportunities. ठीक है, ये इन सब लेवल्स के ऊपर, बिकॉज इफ इट क्रॉसेस अबाउट दिस, ये जोन के ऊपर चला गया ना, इट विल गो इनटू अनदर टेरिटरी. ठीक है, आफ्टर दिस बिगर ब्रेकआउट, ये जो यहाँ से इस लेवल से यहाँ से आया था ब्रेकआउट, and if this prices closes above this, I'll look for this thing. This is how you identify a trade while analyzing the value, कि पैसा exactly कहाँ से follow हो रहा है. ठीक है, Apollo Tyre is a one such thing, but वो on the negative side है. I want a thing that which has got a value based volume and the positive price action. Same goes, somebody want to short, he can look out for the shorting opportunities also, but this is how you filter out. और मैंने यहाँ कहाँ से filter मारा है, निफ्टी का पहला 400 का लिया. मुझे पहला 100 नहीं चाहिए, बिकॉज दो शेयर्स विल नॉट हैव दैट काइंड ऑफ अ मोमेंटम. तो मैंने पहले 400 को फिल्टर आउट किया. ठीक है, हाउ डिड आई फिल्टर आउट, क्रोर्स पे पहले मैंने क्लिक किया, सॉरी, निफ्टी 400, जस्ट अ सेकंड. ओके, निफ्टी 400 को फिल्टर आउट करके मैंने वैल्यू पे क्लिक किया, द हाईएस्ट वॉल्यूम ट्रेडेड स्टॉक. ये स्टॉक में मुझे ज्यादा मोमेंटम मिलेगा एज अ ट्रेडर. आई कैन लुक फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्राइस में ये रहेगा. इफ आई डू रेंज ट्रेडिंग ना, तो आई कैन मेक मोर मनी इन सच सॉर्ट ऑफ सिचुएशन. ठीक है, निफ्टी 100 का भी सेम ही है. निफ्टी 100 में इफ यू गो टू अ स्टॉक, निफ्टी 100 सेलेक्ट करता हूँ, बेसिकली दीज आर द टॉप कंपनीज. वो उसमें से आई विल डू द एनालिसिस कि एग्जैक्टली कौन सा स्टॉक ज्यादा ट्रैक्शन में था उस दिन. ठीक है, वैल्यू पे मैं फिल्टर आउट करता हूँ. ओके,
लगभग 5,000 करोड़ का रिलायंस में काम हुआ है, बट प्राइस वेंट डाउन। ठीक है, रिलायंस पे काम पे करके देखते हैं। पोस्ट रिजल्ट्स वॉल्यूम है, अगर आप रिलायंस का चार्ट जूम आउट करके देखोगे ना, सो एक प्राइस बिहेवियर है रिलायंस का। आफ्टर टेकिंग आउट अ न्यू हाई ना, रिलायंस टेंड्स टू कंसोलिडेट अ लॉट। फिर से बाद में, रिलायंस टेंड्स टू कंसोलिडेट अ लॉट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो फ्रॉम पास्ट आफ्टर मेकिंग द हाई ऑफ 2360, after making the high of 2360, you will see a huge consolidation, एक छोटा सा correction आया, but it's going nowhere, almost like 2100 पे जाता है, then it comes down to 1900. That's how it's in consolidation. So I'll not take a trade into this because right now there is no specific price movement. Say for example, अगर ये stock यहाँ रहता and it has taken out these levels, so this is where I'll look out for a trade. ठीक है, as a trader, because these sort of high अगर taken out, if this is taken out, 1600 का जो high था, it was taken out convincingly. यहाँ पे RSI के signals वगैरह बहुत अच्छे आ गए थे। 53 का RSI automatically started moving up, 1400 का भाव automatically ये हो गया। So what we need to look out कि RSI and the positive momentum। यहाँ पे criss cross बना है, it has gone above the zero line and the lines are sustaining above the zero line, so all of a sudden there is a positive momentum। but अगर price का भी अगर आप देखोगे, only price, if I'm not attaching these indicators, अगर खाली भाव पे ही करोगे लाइन चार्ट लगा के, तो anyone can tell कि यहाँ से अगर if these rates were taken out, ये जो इतना सप्लाई वाला जोन अगर प्राइस क्रिस क्रॉस कर रहा है, तो obviously I can put it this line as a stop loss and carry out this trade। एक सेकेंड, after the breaking of these important level like 1600 1580 का जो लेवल था, वो टूटने के बाद price kept on rising। so this is how you play larger trend। see, when you are trading, take a small positions, like the position that you can handle, and try to ride larger trends। वो कैसा हो जाता है कि sometimes we buy a stock and just because it has gone up by 5-6%, हम लोग उसको बेच देते हैं। so as a trader, primary motive should be to play larger trends, अगर identifying the bigger and better trends। अब यहाँ से अगर किसी ने ट्रेड लिया हुआ है रिलायंस जैसे स्टॉक्स में, इट्स वेरी इजी। बड़े स्टॉक में तो इजी हो जाता है, ठीक है, दे स्टार्ट बजिंग। और यूजुअली होता क्या है, वंस दे आर टेकन आउट ना, सब लोग बोलने लगे एक्सपेंसिव है, गिरेगा एक्सपेंसिव, बट इफ इट सस्टेन्स ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, इट कैन शो यू दिस काइंड ऑफ लेवल्स फ्रॉम 1580 से 200 2300। they are highly liquid, they follow technical analysis, like technical analysis अगर आप उनपे करोगे highly liquid stocks पे, तो they sustain and you will have a better results। so these are all about the technical indicators। अभी कुछ डाउट है ये चार्टिंग वगैरह में, तो one can ask and we can start a simulation session। I want to ask one question. yes sir। Hello. Can hello, you yes hear me? yes, you're audible sir, you go on and ask question। Yeah. Actually, I just want to know if you can see that resistance has been broken. correct। Like in case of Reliance, resistance has been broken at the level of 1518.3. What is the purpose of seeing MACD or RSI? It is clearly visible from the graph only. see, that is what I said sir, sometimes na, there is no need to add the indicators also। indicator, if you are Okay. if you are seasoned na, basically what are the indicators? Indicators are the derivatives of price, whatever the price is doing, indicators will move according to that। so what will move first? The first thing is the price। indicator तो बाद में आएगा, it will have a look back period ना, 14 दिन 15 दिन whatever you have selected, and as per that it will respond। but see, best way of trading is trading through price action trading, because you're not using any indicator, just plain chart, and you have seen ki it has broken out the resistance। your question is right, but for somebody I mean to say, if you know what is the support, what is the resistance, once it has broken the resistance, now you can trade. It can go Correct। anywhere. correct।
Then there is no need of looking for these other parameter like MACD or RSI. See, mostly Am they I are right? correct. Those are used for information bias. What exactly is the momentum right now? You should not say, for example, even if it is broken out now, so you wait for the RSI to cool down. So that way, those are all for used for confirmation. But once you have a price confirmation, yes, the price has taken high with the volume. That's more than enough. That's Okay. you are referring to a price volume action trading, which is a valid and a very good. Okay. I hope the question is answered. Yes. Anyone else will take a volunteer to do a trading in front of us? I'll start something, and who wants to be this thing? I'll start the simulation, and you will do a trading. Anyone? See, nobody actually, I think, does it with the technical analysis. We look at it. Look at the good stocks itself and then do based on the No, daily graph. but the people who are interested in short term this thing, for them it is useful, sir. I agree with you. If anyone wants. Sir, I would like to volunteer. Arey, very good. Your name, sir? Raj Baheti. Raj. Yes, sir. Raj, right now there is a chart in front of you. Are you able to see the chart? Hello? Yes, sir. Yeah. There is a chart in front of you right now. And the price is at 91. Okay? Yes, sir. And this is what the historical movement looks like. Are you want to take a position? You have 1 lakh rupees. Okay? The price is showing some positive traction. So should I put your 1 lakh rupees in this? Sir, first I would check RSI RSI, okay. and MACD. RSI I have put 57, MACD I have put. So these are the values, Raj. Yes. Should I take a trade? Sir, I think that red line is about to cross black line from below. So I would not try to take a trade. Anybody else would like to take a trade in this setup? Because Yes, RSI, I will. RSI has taken a positive this thing. MACD is also moving towards the zero line. So let us take a trade. Somebody said yes. So I buy into this. One second. Yes, 100%. Somebody Ruchit says 100%. Lena hi hai. Okay, Ruchit, I'm buying this for you. Huh? 1 lakh rupees you have invested at 91.99. Okay. Yeah. We'll open up the next day. Wait, next day the price have come down. It closed at 89. Should I book the loss, Ruchit, or should I carry on? 50 का RSI 49 हो गया. There is a little bit change in the indicator also. So should I move on to a next day or you want to book the loss? Well, I think we should move for next day since this blue line in RSI, it's near to 50%. It can shoot up again. Okay, I'll move on to next day then. Okay. Okay. Okay, there is a further drop by some paisa, 88. Now the RSI is at 45, and there is a little bit change in this thing. Should I move on to this thing, or you still want to hold on? We have lost. We have lost 5,000 rupees. By the way. Okay. So it also depends upon our risk appetite, I guess. Yeah, risk. Whatever. This is how you trade. Na? Say for example, I had 10 lakh rupees. I am putting only 1 lakh rupees in that trade. So where do I book the loss? So should I carry on to the next day? गिर रहा है तो ऊपर तो आ ही जाएगा यार. आएगा. So
should I move on to next day or should I book the loss? There's support at 84. It can bounce back from there. There is support at 84. Somebody said there is support at 84. Nice. I'll horizontal. Somebody said there is support. अरे 82 पे भी support है. ठीक है. रुचित, Right. क्या करूँ? Yes. Should I move on to next day? Yes, please. Okay, let's move. 88 Okay. positive. 48. अभी तो next day करना ही पड़ेगा because something has happened. अरे रुचित, 91 भाव आ गया. बेचू क्या? भाव आ गया भाव. नहीं अरे नहीं चलते रहो. चलते रहना है. Yeah. बड़ा next day. ओके प्रॉफिट. अरे 1000 रुपए आ रहा है. Right. ठीक है. नेक्स्ट डे. स्टिल नेक्स्ट डे. अपने no, भाव अभी निकल जाएंगे. हाँ, अभी निकलना है. अरे तो ट्रेड लेने का मतलब ही क्या है? It has crossed the peak. It will go up. Somebody It said has it. crossed the resistance. It may go up. Okay, should I move on to the next day? Okay, so I'll take the advice. Okay, you'll take the advice. Okay, that was a free advice, by the way. Okay, again the price has gone up a little bit. We'll move on to the next. Okay, 92.87, 57 का RSI. And are you able to see the MACD has crossed the zero line? Yes, yes. Okay, तो थोड़ा momentum बन रहा है. Right. हम लोग आगे जाते रहेंगे. Let's see what the price is. Okay, ये तोड़ दी. I think गिरेगा नीचे शायद. नीचे आगे करते जाते हैं. Let's see. Okay. Okay, now it हाँ zero cross कर दिया. जीरो क्रॉस ही नहीं किया है, बहुत कुछ क्रॉस किया है उसने. हाँ. So this is how ये लाइव मार्केट में होता है. ये होता है ना लाइव मार्केट में. Right. Yes. अभी मैं बताता हूँ ये ऐसा क्यों हुआ. प्रॉब्लम है हमने ऐसी चीज पे बेट कर रहे हैं ना हम लोग जिसपे सेंटिमेंट ही खराब है ओवरऑल. somebody said कि मैं ये ट्रेड नहीं लूंगा. he was right. there was a little bit of chance कि ये अगर सस्टेन करता है तो you could have made money. ठीक है. Okay. So by the way, we have lost 13,000 rupees. 12% स्टॉक नीचे हुआ है. And I think we have somewhere, we might have booked losses over here. वो भाव पे. अभी ये नया स्टॉक लेते हैं. ठीक है. I'll new stock. ठीक है. इसको लेते हैं. अभी who's the next volunteer? कौन लेगा ट्रेड? RSI और MACD डाला हुआ है. Who wants to take a trade in this? भी देखोगे तो ये एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक इज गोइंग अप. ठीक है. RSI is at 67, MACD on the higher side. तो ट्रेड लेना है. Anyone wants to take a trade? Hello. सर मैं शॉर्ट करूंगा. You want to short? Who wants to short? राज. Raj, what is this thing? What is the hypothesis behind shorting this stock? Sir, the red line has crossed black line from below. Black line. Okay. In MACD. Okay. And in case if this goes against your view, so where would you like to book the loss? 132 का भाव है. 5%. 5%. 5%. 5% से कितना हो जाएगा? चलो यहाँ पे ये हाई पे हम लोग 10% सर. 10% ना 132. उसमें कितना 13 रुपए ऐड कर देता हूँ. तो ये यहाँ पे this is where you will book the loss, right? Yes sir. मारू शॉर्ट मार रहा हूँ. मार दिया शॉर्ट. ठीक है. नेक्स्ट डे भाव 134 का गया है. कवर करूँगा रहने दूं? नहीं सर रहने दो. नेक्स्ट डे. ओके नेक्स्ट डे. ओके थोड़ा भाव आ गया. ओके. Okay. 135 का हो गया. 67 का RSI, 135 का भाव. You see how indicators are behaving, like 133 के आसपास प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है. ये शॉर्ट के ऊपर. Who shorted this? Sir Raj. Up trending stock you are shorted, right? Raj. Yes sir. 6,000 रुपए जा रहा है. रखना है बेचना है? सर क्लोज कर दो. बाय बैक.
सी ऑलवेज रिमेम्बर, तब मैंने बोला आरएसआई अगर तगड़ा है 50-60 के ऊपर है ना, तो वो ट्रेड लेना नहीं चाहिए। और आपने ये जो क्रिस क्रॉस का लॉजिक लगाया ना, ये जो जस्ट बिकॉज इट हैज क्रॉस, ये जो था, ये हमें ये भी ध्यान रखना है कि दोनों भी लाइन अपने एक दूसरे के बहुत पास है, ठीक है। देयर इज नॉट अ ह्यूज डाइवर्जेंस, ये हिस्टोग्राम पे भी ज्यादा कुछ नहीं है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये जीरो लाइन के ऊपर है, ठीक है। शॉर्ट ट्रेड लेने के लिए क्या करना है अपने को, ये ऐसा हो गया ना, ये इधर ये जीरो लाइन के नीचे अगर आता है तो दिस इज वेयर यू टेक अ शॉर्ट ट्रेड, ठीक है। ये इसको कवर कर दूं, हु शॉर्टेड दिस? राज। अरे नुकसान ही कर रहे हो यार सब लोग, एक कोई तो है, आ जाओ यार कोई तो प्रॉफिट दिलाने के लिए। 96,000 बचा है। एनीबडी एल्स? ये मैंने नया स्टॉक ले लिया अभी, ये नया स्टॉक है। चलो इस पे क्या है, 50 रुपीज का भाव है, 43 का आरएसआई है, एमएससीडी नीचे ही है, बट थोड़ा सा मोमेंटम बना हुआ है इसमें, थोड़ा सा है इसमें मोमेंटम। लेकिन अगर प्राइस हिस्ट्री देखूंगा तो गिरा हुआ स्टॉक है, हाई से पीक पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेके वापस से गिरा है। Who wants to take a trade in this? हेलो, किसी को ट्रेड लेना है इसमें? एवरीबॉडी इज एनालाइजिंग कि यार क्या हो गया है, क्या किधर से क्या करना है। भाव तो कितना, भाव एकदम न्यूट्रल जोन पे आ गया, बढ़ गया गिर गया, अभी न्यूट्रल जोन पे क्या करना है? या फिर मैं इसको एक दिन आगे कर दूं, वांट टू सी अ नेक्स्ट डे प्राइस एक्शन। फिफ्टी के नीचे शॉर्ट, 50 के नीचे शॉर्ट कौन है? सूरज 50 के नीचे शॉर्ट करो, ठीक है। नेक्स्ट डे में बढ़ा देता हूँ। ये 52 हो गया सूरज, क्या करना है? अच्छा 50 के नीचे शॉर्ट बोला था, लेट्स सी द नेक्स्ट डे। आरएसआई 54, एमएससीडी भी थोड़ा पॉजिटिव ट्रैक्शन दे रहा है। Yeah, it's going up. It's going up. एक सेकेंड ना, जस्ट अ सेकेंड। Just a second, huh? I think something's wrong with the data. Are you able to hear me? Hello? Hello? Yes. Yes, yes. Yeah, sorry. Connection. ए क्या कर रहा है? 50 के नीचे शॉर्ट, नेक्स्ट डे आगे करूं? क्या है? 54 के ऊपर बाय। ठीक है चलो आगे ये कर दिया, बड़ा प्राइस एक्शन है, बुलिश कैंडल बना है ये। 51, 52, 51, 50, 97, नेक्स्ट डे लेके जा रहा हूँ मैं फास्ट करता हूँ। ये भाव बाजार में ऐसे ही घटता बढ़ता है ना, दिस इज हाउ यू हैव टू टेक डिसीजन इन लाइव मार्केट। लेट अस सी, भाव कंसोलिडेट कर रहा है कहीं पे, मतलब देयर इज नो ओके। किसने शॉर्ट किया ये? एक सेकंड में बताता हूँ शॉर्ट किसने मारा। नहीं 54 के ऊपर पाई दिया था किसी ने, somebody has bought it at, एक सेकंड, 50 के नीचे शॉर्ट, 54 के ऊपर बाय। सूरज 54 के ऊपर बाय किया, मान लो 55 में मैंने लिया है, रखूं क्या बेचूं? हेलो 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 सूरज, आर यू एबल टू हियर मी? सूरज चैट में डाल रहा है, सूरज होल्ड, कैरी ऑन, ओके आगे लेके जाता हूँ। थोड़ा गिरेगा। हाँ 55, 57, RSI 64, 57, 55, 56, 58, 57, 55 वापस, 55 अगेन, 54 पे वापस आ गया, 57 पे एग्जिट सर भेज दिया। 54 पर लिया है, कितना मिला? What is the percentage? This thing is almost 6-7% मिला रहेगा। So this is how you take
trades based on technical analysis. बड़ा breakout था and he used the right logic कि एक particular level cross होने के बाद 54 का ये जो level था, he must have felt कि this is taken out, there could be a good buy trade. By the way, it made a high of 60. 60 तक भी गया था. 54 से this thing is almost a 10-11%. Somebody would have made it. एक last stock ले लेते हैं, उसके बाद we'll close out this session. Okay, ये stock है, ठीक है. This is how the stock looks like. 318 का है, थोड़ा सा करेक्शन जोन में बड़ा एक दिया था ब्रेकआउट, उसके बाद एक करेक्शन. Who wants to take a trade? बाय करूं, शॉर्ट करूं, क्या करना है? $318 का है. प्राइस हिस्ट्री देखेंगे तो कितने का? 350 तक गया था और लो मारा है 300 का. Anyone want to take a trade? RSI 48 पे, MACD lines थोड़ा सा मतलब नेगेटिव डाइवर्जेंस में ही जा रहा है. Anyone want to take a trade? Should I take a trade? Yes. Long or short? Long. Long trade you want to make? Okay. Buy at 315 बराबर है. Okay. 316 पे आ गया, 318 पे आ गया है. 314 पे क्लोज दिया है ना. बेचू, खरीदू? होल्ड करो. होल्ड करना है. ओके, नेक्स्ट है 316, 318, ठीक है. ओके, 325 रखना है, बेचना है? 318 का बाय रखना है अभी. 57 का RSI. 329 रखू, बेचू? RSI 60, MACD पॉजिटिव डाइवर्जेंस, ब्लैक लाइन. रखेंगे. ओके, रखेंगे. Keep it. ओह, 329. 325 पे वापस. 325, 322. एग्जिट करना है, एग्जिट. अच्छा ठीक है, मान लो मैं हमने 321 पे एग्जिट कर दिया, 1-2 रुपया मिल गया. देखते हैं आगे भाव कैसा गया है. 128. सी एग्जैक्टली हमारे बाइंग प्राइस से 328, 29. स्टॉक एक्चुअली कंसोलिडेशन में ही है काइंड ऑफ. ये जो हाई है ना, वो टूट नहीं पा रहा है. एक सेकंड. दिस हाई इज टेकन आउट. हमने वो बेच दिया है बेसिकली. आई एम जस्ट लुकिंग एट थिंग कि क्या कितना जा रहा है. 336, 34 चला गया. 377. Go higher. ये चार्ट का जो है ना, मैं ये लिंक भेज दूंगा. इसमें एक्चुअली बहुत अच्छा ये है. यू डोंट नो व्हिच स्टॉक यू आर ट्रेडिंग बेसिकली, और इसी में आपको यू हैव टू यूज द टेक्निकल एनालिसिस कि क्या भाव पे आपने लिया था. तो बॉटम लाइन इज, व्हेनेवर यू आर ट्रेडिंग, आपका उतना ही ट्रेड में कैपिटल लगा होना चाहिए जो इतना शेकी नहीं होना है. मतलब 2-2, 5-5, 10-10 रुपए के मूवमेंट में इफ यू आर फीलिंग नर्वस, तो आप बड़ा ट्रेंड खेल ही नहीं पाओगे. 10-15% का मूवमेंट इज अ नॉर्मल इन द मार्केट. स्टॉक अगर 10-15% है, वो नॉर्मल है. तो इसके लिए आपको अपना पोजीशन छोटा करना चाहिए. इफ द पोजीशन इज स्मॉल ना, आई कैन राइड बिग ट्रेंड. एक छोटे मोटे करेक्शन से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है. तो वेरेवर ऑलवेज रिमेंबर कि पोजीशन आपने छोटा रखना है, ट्रेंड हमेशा बड़ा खेलना है. इट इज नॉट दैट कि 10-5 रुपए आ गए और आपने प्रॉफिट बुक कर दिया, बिकॉज व्हेनेवर द स्टॉक गोज डाउन ना, देयर इज अ टेंडेंसी कि आप लॉस के साथ बने रहे. तो एक लास्ट स्टॉक ले ले. यस ले लो. उसको अभी सट्टा मारना है. सॉरी, एक सेकंड. मिनिमाइज. एक सेकंड, ये क्या हो गया? आई थिंक वो शेयरिंग चला गया. So एक सेकंड. किसी को ये चला गया क्या? ये क्या आया है बीच में? You cannot minimize Zoom when you are recording this meeting. Is it? Okay. मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ.